प्रिपरेशन अगर आप इंग्लिश मीडियम में करना चाहते हैं देन यू आर एट द राइट प्लेस. चेंज द मीडियम फॉर यूपीएससी इज द नेम ऑफ द चैनल. डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर अमंग ऑल द हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आप इंग्लिश को सुन सकें, राइट, और आपके सिलेक्शन के चांसेस और ज़्यादा इन्हांस हो सके, राइट. तो आपका ये जो एडिटोरियल है ये एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि इससे कुछ आ सकता है क्वेश्चन में, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट दिस पर्टिकुलर आर्टिकल इज रिटन बाय मिस स्मृति मिश्रा. ठीक है ना. ये कौन है, इनके बारे में आप जानिए. यहाँ पे ये कौन है जो इस बार की सिविल सर्विस एग्जामिनेशन हुई है उसमें जो रैंक इनकी आई है, कौन सी रैंक आई है, 4th रैंक आई है. ठीक है ना. ऑल इंडिया रैंक 4th शी हैज़ सिक्योर्ड, राइट. और वो इस वक्त लबासना में ट्रेनिंग कर रही हैं और वो आईएएस प्रोबेशनर हैं लबासना में. तो उनके व्यूज़ हैं, उन्होंने अपनी जर्नी को इसमें शेयर किया है. और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स है कि क्या उन्होंने अपनी जर्नी को उसमें शेयर किया है, वो ये है कि हाउ इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर अ कॉलेज स्टूडेंट टू प्रिपेयर फॉर एन आईएएस एग्जामिनेशन. ये इलाहाबाद की रहने वाली हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, और इन्होंने मिरांडा हाउस दिल्ली से पढ़ाई की है. और उसके साथ साथ कि अगर ये क्या थी, कॉलेज स्टूडेंट थी, उसके साथ साथ इन्होंने आईएएस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन किस तरीके से की वो भी इन्होंने इसमें अपनी एक तरीके की जर्नी को शेयर किया है एस्पिरेंट्स के साथ में. ठीक है. और इनके लिए लिबर्टी का मतलब क्या है और कैसे इन्होंने अपने थॉट प्रोसेस को ग्रो किया, कैसे इन्होंने अपनी लाइफ को समझा. सो वो सारी चीज़ें बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट, राइट, कि आपकी लाइफ की गाइडिंग जर्नी कैसी होनी चाहिए, राइट. एंड व्हाट गिव यू एन इम्पीटस टू प्रिपेयर फॉर द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन. मतलब कौन सी ऐसी चीज़ होनी चाहिए दैट शुड गिव यू अ काइंड ऑफ मोटिवेशन that should start preparing for this particular examination and end up clearing it and start living the kind of dream that you sometimes might have thought of, right. So this is what she had shared into this particular article. So my request is to Hindi medium aspirant ki jitna zyada se zyada you will start listening things into English, right. This is how you will be able to change your medium, and the selection means it will increase. Means the selection rate of the Hindi medium student will increase for sure, right. So start listening things more and more, and slowly you realize that your mind start reflecting in English, right. You just start listening. First of all, the most important thing is that you should start listening things and then start reading and then start writing something, and whatever you can write, whatever you can memorize, whatever you can recall, just start speaking something, right. And there is a WhatsApp number given on this particular WhatsApp number, right, on this YouTube channel. You can send your voice notes also, and you can write whatever you'd like to write with respect to the civil service examination in English, whatever the broken English you write, and I'll be reflecting back to you for sure. Okay. And now the third thing she talks about, that how to make the decision. So actually in the history also, like when you are reading the word history, that is the part of the general studies paper first. So here what Napoleon says, right, Napoleon Bonaparte, what he said, right, he was from the France military commander, right, the entire world knows him. Okay. So his quote was very very important for her, and she has quoted all these things, what he has written, and what kind of things was very very near to her heart and mind, and how she conceived all these things, right. So this is what becomes very very important, that how you understand things written in the history, or you take inspiration from the quotes, or the kind of very world renowned personalities you take some inspirations from, right. And how important the time, how important is the time for a UPSC aspirant. That means the time management, how you should do it, right. And she got failed in her first 2 attempts, right. So this was her 3rd attempt, and she secured all India rank 4th. Okay. So this is not for just to examination, but yes, this will definitely help you to draw some inspiration from such a wonderful lady, right, because she has cleared the examination and she has managed everything really well, and she is sharing all these things in herself, right. So let's get started. So what she writes about it, and here it is written that the views are personal. So whatever she has written, it is a personal experience, right. So we can relate, right, all the civil services aspirant can easily relate that what she actually wants to talk about to the all the civil services aspirants, right. So first of all is freedom is servicing. Freedom is serving my motherland. So serving means सेवा करना, right. So freedom is क्या मतलब इनके लिए, मैम के लिए जो है, स्वतंत्रता का मतलब क्या है. स्वतंत्रता का मतलब है कि जो इनकी मातृभूमि है, इंडिया, भारत, जो अपना देश है, हिंदुस्तान, तो उसकी सेवा करना इनके लिए फ्रीडम है. ठीक है ना. तो देखिए, आप जब अच्छे से मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, सही गोल आप अपनी लाइफ में सेट करते हैं, तो आपको ये जो वर्ड्स हैं फ्रीडम, सिर्फ इनका मतलब आपको स्वतंत्रता नहीं पता चलेगा, आपको पता चलेगा कि इसको कैसे हम रियलाइज कर सकें, हाउ वी कैन फील दैट येस आई हैव द फ्रीडम, राइट. सो मैम जो है स्मृति मिश्रा जी, वो कैसे फील करती हैं कि फ्रीडम क्या है. तो उनके हिसाब से फ्रीडम इज सर्विंग माई मदरलैंड, राइट. सो फ्रीडम में क्या है, सेवा है. ठीक है ना, अपने मदरलैंड के प्रति, अपनी जो मातृभूमि है उसके प्रति. तो उसके बाद क्या लिखती हैं कि फॉर मी एज अ सिविल सर्वेंट, क्योंकि अब ये सिविल सर्वेंट बन चुकी हैं, राइट. सो फॉर मी एज अ सिविल सर्वेंट, सर्विस इज नॉट एन ऑब्लिगेशन. ऑब्लिगेशन मतलब क्या कि कोई लॉ बाउंड ऐसी ड्यूटी नहीं है कि आपको मतलब सर्विस करना ही है, बट अ प्रिविलेज. तो प्रिविलेज मतलब क्या है, विशेषाधिकार है. अब ये विशेषाधिकार उन्होंने अपनी बहुत ही कठिन मेहनत से हासिल किया है, राइट. तो उनके हिसाब से कि एक सिविल सर्वेंट के तौर पे सर्विस इज नॉट एन ऑब्लिगेशन, मतलब सर्विस एक तरीके की, मतलब ऐसी नहीं, बाध्यता नहीं होनी चाहिए कि हाँ ये ऑब्लिगेशन है, मुझे करना ही है.
चाहिए, वो मतलब आपको खुद से हासिल करना चाहिए ऐसी चीज़ को और फिर आपको सर्विस करनी चाहिए, वो इनका मतलब है, ठीक है। तो प्रिविलेज मतलब विशेषाधिकार है। आप देखिए ये मतलब स्टार्ट कहाँ से करती हैं, स्मृति मिश्रा जी, आप इनको देख लीजिए ठीक से, ठीक है, और इनकी ऑल इंडिया रैंक 4 है, ठीक है। तो यूट्यूब पे भी बहुत सारे वीडियोस हो सकता है आपको मिल जाए, राइट। सो ये आर्टिकल पे मेरी नजर पड़ी तो आई थॉट टू एक्सप्लेन इट एंड शेयर इट विद ऑल द गाइस, राइट। सो अ कोट एट्रीब्यूटेड टू, तो यहाँ पे लिखा कोट, कोट मीन्स जो भी किसी के बारे में कुछ लिखा जाता है, बताया जाता है। एट्रीब्यूटेड मतलब जो कुछ गुण होते हैं, जो मतलब स्पेसिफिक जो गुण होते हैं, किसी के अंदर वर्च्यूज होते हैं, उनके बारे में। तो नेपोलियन बोनापार्टे जो हैं, ठीक है, उनके बारे में एक ऐसी बात कही जाती है, तो उन्होंने क्या कहा था, नथिंग इज मोर डिफिकल्ट एंड देयरफॉर मोर प्रेशियस दैन टू बी एबल टू डिसाइड, ठीक है। नथिंग इज मोर डिफिकल्ट मतलब कुछ भी इससे ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, और अंततः क्या है, मोर प्रेशस, और इससे ज़्यादा कीमती भी नहीं है। और किससे ज़्यादा नहीं है, टू बी एबल टू डिसाइड, कि आप किसी चीज़ का निर्णय ले सकें। तो अब देखिए सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में क्या है, सबसे ज़्यादा आपको डिसीजन मेकिंग की ही समझ होनी चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए मैम ने ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि नथिंग इज मोर डिफिकल्ट एंड देयरफॉर मोर प्रेशियस देन टू बी एबल टू डिसाइड। मतलब कोई भी चीज़ डिसीजन लेने से ज़्यादा ना तो बहुत ज़्यादा कठिन है और ना ही उससे ज़्यादा कोई चीज़ कीमती है। मतलब डिसीजन लेना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। अब उसके बाद क्या लिखेंगे, एज आई पेन डाउन दिस पीस फ्रॉम द लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लबासना से, वो ये लिख रही हैं इस मतलब आर्टिकल को, पीस मतलब ये जो आर्टिकल है उसको जो ये लिख रही हैं लबासना से, मसूरी, जहाँ, ठीक है ना, मसूरी पे सबको पता है। अ प्लेस आई हैड वंस ओनली ड्रीम्ड ऑफ बीइंग इन, मतलब ये एक ऐसी जगह है जिसके बारे में एक बार इन्होंने केवल सपना देखा था कि मैं यहाँ पर होंगी कभी, राइट। सो आई रिफ्लेक्ट ऑन हाउ माई एबिलिटी टू हार्बर ड्रीम्स एंड टू बी फॉर्चुनेट इनफ टू लिव माई ड्रीम इज इन फैक्ट अ गिफ्ट आई इनहेरिटेड फ्रॉम आवर फोर फादर्स, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि मैं इस आर्टिकल में ये बताऊंगी कि कैसे मैंने अपने ड्रीम को हार्बर किया, अपने दिमाग में रखा, और फिर कैसे उसको नीट किया, कैसे उसको बुना मैंने, ठीक है। और कितनी मैं लकी रही, मतलब लकी कैसे रही, कि बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद, वो तो एक लिखने का एक तरीका है कि मैं बहुत ही फॉर्चुनेट इनफ रही हूँ, बहुत ही भाग्यशाली रही हूँ, ठीक है। ये तो एक ह्यूमिलिटी दिखाने का, एक विनम्रता दिखाने का तरीका है, और अल्टीमेटली तो उनकी मेहनत ही है, राइट। सो टू बी फॉर्चुनेट इनफ टू लिव माई ड्रीम, राइट। तो जो सपना उन्होंने देखा था कि बहुत ही भाग्यशाली है कि वो सपना आज वो जी रही हैं, राइट। इनफैक्ट अ गिफ्ट आई इनहेरिटेड फ्रॉम आवर फोर फादर, तो फोर फादर्स मतलब क्या है, सरदार वल्लभ भाई पटेल और जितने भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, उनमें जिसका भी इसमें रोल रहा है कि सिविल सर्विसेज होनी चाहिए इंडिया में, ठीक है। तो वहाँ से इनहेरिट किया है इन्होंने उसको, ठीक है। सो 100 years ago, 100 साल पहले, दिस वुड हैव बीन इम्पॉसिबल टू इवन थिंक ऑफ, इसको सोचना भी मुश्किल रहा होता होगा, ठीक है ना। 100 साल पहले कौन सोच सकता था कि इंडियंस भी सिविल सर्विसेज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, राइट। सो टू हैव द फ्रीडम ऑफ चॉइस टू डिसाइड व्हाट इज राइट और रॉन्ग इज द ट्रू मार्क ऑफ एम्पावरमेंट। तो ये कहती हैं कि अगर हमारे पास फ्रीडम की चॉइस है, कि हाँ भाई हमारे पास अगर स्वतंत्रता का अधिकार है, मतलब ठीक है, या मतलब जो है फ्रीडम को हम मतलब चूज कर सकते हैं और ये निर्णय ले सकते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, तो इसका मतलब सही यही तरीका है कि इसका मतलब ही एम्पावरमेंट है। सशक्तिकरण का मतलब यही है कि हमारे पास अगर ये राइट हो कि हम चूज कर सकें कि क्या सही है और क्या गलत है, ये लिख रही हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट, और बहुत ही ईमानदारी से कहती हैं कि आइडियाज़ लाइक लिबर्टी डिड नॉट मेक अ लॉट ऑफ सेंस टू मी व्हेन आई वाज इन स्कूल। तो ये कहती हैं कि जब मैं स्कूल में थी तो जो ये आइडियाज़ हैं, जैसे लिबर्टी मतलब क्या होता है, तो ये एक आइडिया है, ठीक है। तो इसके बारे में इन्हें बहुत ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आता था जब स्कूल। तो आप भी समझिए कि जो इन्होंने लिखा है बहुत ही सही लिखा है, अपनी अपनी लाइफ के ट्रू एक्सपीरियंसेस को शेयर किया, जिससे कि एक जो सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स हैं जो स्टार्ट कर रहे हैं, बिगिनिंग में है, बिगिनिंग बिल्कुल फेज में है, तो उनको भी ये लग सके कि हाँ अगर मुझे भी नहीं आता तो देखिए मैम ने 4th रैंक हासिल की है, ठीक है। तो स्कूल में जब वो थी तो उनको भी आइडियाज़ मतलब जो लिबर्टी वगैरह उतना ज़्यादा मतलब उतना ज़्यादा फोकस नहीं था, समझ में नहीं आता था, राइट, ठीक है। देन देन आई वॉज गिवन एवरीथिंग दैट आई वांटेड, तो उनका कहना है कि मुझे वो सब कुछ मिला जो मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत थी, ठीक है। हैड द बेस्ट एजुकेशन, बहुत अच्छी एजुकेशन मिली मुझे, एंड वॉज ब्लेस्ड विद एन इनक्रेडिबल सपोर्ट सिस्टम, और मतलब कहने का मतलब है कि बहुत ही अच्छा सपोर्ट सिस्टम था, फैमिली एवरीबडी वॉज वेरी वेरी सपोर्टिव, फ्रेंड्स एंड कॉलेज एवरीथिंग लाइक दैट, ओके। सो आई नेवर रियलाइज दैट कन्वीनियंस इज इटसेल्फ अ बैरियर टू फ्रीडम। तो इन्होंने मतलब जबकि इनको सब कुछ अच्छा अच्छा मिला तो इनको ये रियलाइज़ हुआ बाद में कि ये जो इतनी आसानी से सारी चीज़ें मुझे मिल रही हैं, यही मेरी फ्रीडम में एक बाधा के रूप में काम कर रही हैं। अनटिल आई स्टेप्ड आउट ऑफ माई होम टू ज्वाइन मिरांडा हाउस दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो इन्होंने लगा कि मतलब जब तक मैंने मिरांडा हाउस को नहीं ज्वाइन किया तब तक मुझे लगता था कि हाँ ये सब होती है, बट जब मैंने मिरांडा हाउस को ज्वाइन किया तब क्या रियल वर्ड देखा इन्होंने, द रियल वर्ड as I soon discovered was uncomfortable। तो जैसे ही इन्होंने मिरांडा हाउस में मतलब कदम रखा, अपने एक कंफर्ट जोन से बाहर आई, तो क्योंकि ये यहाँ की रहने वाली, उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं, प्रयागराज से हैं। सो रियल वर्ड इनके लिए क्या था कि एज आई सून डिस्कवर, तो जैसा कि इन्होंने
मतलब खोजा या पाया उस बहुत ही अनकंफर्टेबल सा था, बहुत ही हार्श था, रूड था और अनवेलकमिंग, जो स्वागत नहीं करने वाला था, बहुत अच्छा एटमोसफियर नहीं मिला नहीं स्टार्टिंग में। बट इट वॉज माई फर्स्ट ब्रश विद इंडिपेंडेंस, लेकिन ये उनका एक पहले तरीके मतलब जो फर्स्ट एक्सपीरियंस था इंडिपेंडेंस के साथ में, कि क्या है एक्चुअली इंडिपेंडेंस, राइट, टू हैव अ सेंस ऑफ ऑटोनॉमी ओवर वंस टाइम एंड स्पेस, राइट। तो उनको एक सेंस पता चला कि जो ऑटोनॉमी है, राइट, जो एक मतलब जो एक स्वायत्ता है एक व्यक्ति के, मतलब जो उनके टाइम की और स्पेस की क्या है। सो ग्रेजुअली इट dawned on me how responsibility is liberty in itself। तो स्लोली स्लोली इनको ये पता चला कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वही एक्चुअली अपने आप में एक लिबर्टी है, कि रिस्पॉन्सिबल होना लिबर्टी होने के बराबर है, कि अगर आप अपनी ज़िंदगी के प्रति रिस्पॉन्सिबल हैं तो दैट मीन्स आपके पास लिबर्टी है, राइट। दैट इज़ व्हेन आई डिसाइडेड टू प्रिपेयर फॉर द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय यूपीएससी। तो उसी वक्त इन्होंने आईएएस एग्जामिनेशन किया, यूपीएससी जो एग्जाम कराता है आईएएस का, उसको प्रिपेयर करना स्टार्ट किया। द यूपीएससी प्रिपरेशन अलॉन्ग विद अ रेगुलर कॉलेज कोर्स वाज ऑर्डुअस, मोनोटोनस एंड लॉन्ग। और मतलब अब ये बता रहे कि जब ये कॉलेज स्टूडेंट थी तो उसके साथ में यूपीएससी की प्रिपरेशन करना, ठीक है, जो इनका कॉलेज कोर्स था, जो भी करती बीए में, जो भी मतलब जिस भी कोर्स में इन्वॉल्व थी, वॉज ऑर्डुअस, बहुत ही मेहनत, मतलब बहुत ज़्यादा संघर्षपूर्ण था और बहुत ज़्यादा मोनोटोनस, क्योंकि मतलब कॉलेज में भी पढ़ाई, फिर यूपीएससी के लिए भी पढ़ाई, और बहुत लंबी ये सब चलती थी, ठीक है। सो आई थस बिगैन टू वैल्यू ईच मिनट ऑफ द डे। तो फिर उसके बाद उन्होंने हर एक मिनट को वैल्यू करना स्टार्ट किया, उसका बिल्कुल एक हिसाब से मैनेजमेंट करना स्टार्ट किया, कीप एन एवल आई रखना शुरू किया कि कहाँ मेरा टाइम जाता है, कितना करना, राइट। सो दैट इज वाई टाइम इंपॉर्टेंट, right, it is very very important, right, that time is a scarce and precious resource is something I picked up from my preparation phase। तो preparation phase से इन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या निकाली, प्रेशियस मतलब है कीमती, तो कीमती, और मतलब रिसोर्सेज मतलब साधन, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, और स्कार्स मतलब जो सबसे कम होती है वो क्या है, वक्त, समय, टाइम। तो इन्होंने टाइम को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी, वो इनको पूरे प्रिपरेशन फेसेस में आया कि टाइम कितना इंपॉर्टेंट। तो आप लोग अपने टाइम को वेस्ट बिल्कुल भी ना करें, राइट। आप देखिए आपके साथ में, देखिए इन्होंने 4th रैंक हासिल किया, सच अ ह्यूज अचीवमेंट, राइट। तो द अल्टीमेट एम आई फिगर्ड आउट वाज नॉट टू क्लियर वन एग्जामिनेशन। तो इन्होंने सोचा कि मेरा अल्टीमेट एम ये नहीं कि मैं केवल एक एग्जामिनेशन को क्लियर करूं, बट टू स्टीयर माई लाइफ सच दैट आई लिव ऑन सर्टन हेल्दी प्रिंसिपल। तो उन्होंने सोचा लेकिन मैं अपने लाइफ को ऐसी दिशा दूंगी कि जो मैं एक कुछ अच्छे प्रिंसिपल्स, कुछ अच्छे सिद्धांतों पर मैं अपनी ज़िंदगी को जी सकूं, राइट। तो उसमें से क्या था, वन सच प्रिंसिपल बीइंग टू बी इन कंट्रोल ऑफ वन टाइम। तो उन्होंने सोचा कि एक ऐसा सिद्धांत मेरी लाइफ का ये हमेशा रहेगा कि मैं अपना मतलब जो भी वक्त है इनके पास, उस वक्त पर कैसे कंट्रोल करती हैं, कैसे उस टाइम को यूटिलाइज करती हैं, उसका पूरा इनके पास एक अकाउंट होना चाहिए। तो ये एक सिद्धांत इन्होंने बनाया, एंड कॉन्सिक्वेंटली, और परिणाम स्वरूप वन लाइफ। और उसके साथ साथ जब आपका टाइम को आप अपनी मुट्ठी में रखेंगे कि आपको पता है कि किस टाइम आपको क्या करना है, तो उसी के हिसाब से आपकी जिंदगी भी बहुत अच्छे से शेप होगी, राइट। सो फ्रीडम नाउ मेंट, सो आप देखिए एक सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट की लाइफ में टाइम कितना इंपॉर्टेंट होता है, राइट। सो फ्रीडम नाउ meant being in charge of my life and destiny। तो फ्रीडम का मतलब अब इनको समझ में आने लगा कि चार्ज ऑफ माई लाइफ एंड डेस्टिनी, कि अगर अपनी जिंदगी का चार्ज अपने हाथ में लिया आपने, तो आपकी किस्मत या आपका जो भी भविष्य होगा वो भी लगभग लगभग आपके हाथ में होगा। समथिंग दैट हेल्प मी एक्सेप्ट एंड मनूवर थ्रू द टफ कार्ड्स दैट लाइफ डेल्ट इन द फॉर्म ऑफ फेल्योर्स इन द फर्स्ट 2 अटेम्प्ट। तो जब ये फर्स्ट 2 अटेम्प्ट्स में नहीं क्लियर हो पाया एग्जामिनेशन, तो ये जो इनके ये जो इन्होंने अपने हाथ में मतलब वक्त की वैल्यू करना सीखा, तो ये सारी चीज़ों ने इनको बहुत मदद की, ठीक है ना, लाइफ में ऐसी चीज़ों से डील करने में, फेलियर से डील करने में। द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन रिजल्ट्स दिस ईयर आर हिस्टोरिक। तो हमने बताया कि आज की जो इस वर्ष के जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के रिजल्ट्स हैं वो ऐतिहासिक हैं, क्योंकि वुमेन जो हैं, जो महिलाएं हैं, उन्होंने 34%, मतलब जो टोटल अगर कैंडिडेट्स हैं उसमें 34% जो कैंडिडेट्स हैं वो वुमेन कैंडिडेट्स हैं। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। एंड 12 ऑफ द टॉप 20 कैंडिडेट्स आर वुमेन, और 20 में से 12 महिलाएं हैं स्टार्टिंग में, राइट। सो एज वन सच वुमेन, और उनमें से ये एक है क्योंकि इनकी रैंक 4th है, ओके। सो एज वन सच वुमेन इट इज़ अ sobering reminder how this result is a manifestation of a system of justice। तो उन्होंने बताया कि किस तरीके से आप देखिए ये एक सिस्टम ऑफ जस्टिस है, एक न्याय की जो ये व्यवस्था है, उसमें देखिए कि किस तरीके से ये रिजल्ट आई है। दिखाता है कि अगर स्टार्टिंग में 20 जो स्टार्टिंग से 1 to 20 उसमें से 12 महिलाएं हैं, तो कितना जस्टिस है इस सिस्टम में, कितना न्यायपूर्ण व्यवस्था है ये, ठीक है। हाउ वी ऑल आर बेनिफिशरीज ऑफ अ सिस्टम ऑफ जस्टिस, हम सभी किस प्रकार से लाभान्वित होते हैं इस तरीके के जो न्याय के जो सिस्टम है, ठीक है, न्याय की जो व्यवस्था है। एंड इट इज़ थस अवर मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ये इस प्रकार हमारी ये एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है टू मेक इट अवेलेबल टू एवरी सिटीजन। क्योंकि देखिए जैसे इनका कहना है, मैम का कहना ये है, स्मृति मिश्रा जी का कहना ये है कि जिस प्रकार से स्टार्टिंग में देखिए जब ये यूपीएससी कंडक्ट रहा था तो कोई भेदभाव नहीं, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है ना। अगर महिलाओं के अंदर टैलेंट है, देखिए बिल्कुल बिल्कुल शेयर टू शेयर टैलेंट सामने निकल के आ रहा है, ठीक है ना। स्टार्टिंग
के जो है अगर आप देखें 1 to 20 तो कितनी 12 वुमेन है, राइट। और उनमें से तो जब ये यूपीएससी जैसे जो संस्था है हमारे देश में, जब ये इतना ज़्यादा जस्टिस के साथ काम करती हैं, तो अब जो लोग सिलेक्ट हुए हैं उनकी भी ये जिम्मेदारी और हम सभी की एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि इसी न्याय को हम हर एक नागरिक के लिए उपलब्ध कराएं, राइट। दैट एन ऑर्डिनरी गर्ल फ्रॉम प्रयागराज कैन हैव एक्स्ट्रॉर्डनरी ड्रीम। अब उन्होंने बताया कि जो एक लड़की जो कि प्रयागराज से है वो एक एक्स्ट्रॉर्डनरी मतलब ड्रीम्स रख सकती हैं, ठीक है ना, and मतलब take up space and have a voice represents a system fueled by and running of hope। और ऐसे सिस्टम में जो कि एक होप के ऊपर चल रहा है, एक आशावादी सोच के साथ मतलब चल रहा है, ठीक है। a system created by blood sweat and tears of our forefathers and mothers। तो कहने का मतलब जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे या जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, जितने भी लोगों ने इस देश को बनाया है, उन्होंने अपना स्वेट ब्लड एंड जो भी मतलब बहुत मेहनत से ऐसे इंस्टीट्यूशंस को तैयार किया गया है, राइट। सो एज मच आई लव माई होम स्टेट, एज मच आई लव माई होम स्टेट उत्तर प्रदेश, तो उन्होंने कहा जितना ज़्यादा से ज़्यादा मैं प्यार अपने उत्तर प्रदेश से करती हूँ जो कि मेरा होम स्टेट है, देर आर स्टिल पॉकेट्स वेयर द बर्थ ऑफ अ गर्ल चाइल्ड ब्रिंग्स ग्लूम एंड मेलॉन्कली। और बता दें कि बहुत सारी ऐसी भी जगहें हैं जहाँ पर अगर एक लड़की का जन्म होता है तो उसको बहुत ही उदासी के साथ, बहुत ही मतलब अच्छा नहीं माना जाता, ऑस्पिशियस नहीं माना जाता है। सो आई होप दिस ईयर्स यूपीएससी रिजल्ट्स गिव्स पीपल द चांस टू रिफ्लेक्ट एंड री एग्जामिन देयर थॉट प्रोसेस। तो कहते हैं कि जिस तरीके से ये रिजल्ट आया इस बार, जहाँ पर इतनी ज़्यादा संख्या में महिलाएं सिलेक्ट हुई हैं इतने बड़े एग्जामिनेशन में, देश के सबसे बड़े एग्जामिनेशन में, ये लोगों के थॉट प्रोसेस को चेंज करने के लिए एक मौका है कि आप देखिए कि जो है लड़कियां कितना अच्छे से अच्छा कर सकती हैं, राइट। सो आई होप द रिजल्ट्स एनेबल मेनी यंग स्मृतिज। तो जो कि मैम का नाम स्मृति है, तो कह रहे हैं कि ये ऐसी आशा करती हैं कि ये जो रिजल्ट आया है ये बहुत सारी स्मृति मतलब जो यंग स्मृति मैम सेलेक्ट हो गई तो इनको जो फॉलो करती हैं, जो इनसे इंस्पिरेशन लेंगी, बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं, ठीक है ना, जो कि एक्सप्लोर कर सकती हैं उनकी खुद की इंडिपेंडेंस क्या है ना, एंड हैव द फ्रीडम टू ड्रीम बिग। और अपनी मतलब जो भी इनके मतलब उनके सपने हैं, उनको बहुत बड़े बड़े सपनों को भी वो देखने की उनको आज़ादी देता है इस तरीके का रिजल्ट, ठीक है, जैसा ये आया इस बार का। एज आई टेक अ स्टेप बैक एंड लुक एट माई जर्नी सो फार। और जैसे ही वो एक स्टेप मतलब पीछे जाकर के देखती हैं और देखती हैं कि उनकी जर्नी कैसी रही है अभी तक की, द फ्रीडम टू ड्रीम बिग, द फ्रीडम टू ड्रीम बिग, जो बहुत बड़े सपने इन्होंने देखे, टू टेक अप रिस्पॉन्सिबिलिटी विद ह्यूमिलिटी, जो इन्होंने जिम्मेदारी और वो बहुत ही विनम्रता के साथ ली, एंड टू बी इन कंट्रोल ऑफ माई लाइफ इनेबल्ड मी टू एंटर दी हैलोड गेट्स ऑफ द लवान। तो है वो, तो हैलोड मीन्स होता है बहुत ही रिस्पेक्टफुल, बहुत ही डिग्निफाइड, बहुत ही पवित्र, मतलब जिसको बहुत ही अच्छा, बहुत ज़्यादा सम्मान आप देते हैं। तो ये सारी चीज़ों को जब इन्होंने अपनी ज़िंदगी में उतारा तो इसकी वजह से इनको लगता है कि ये सारी चीज़ें उन्होंने हेल्प किया कि फाइनली ये सेलेक्ट हुई और आज वो लवासना में एज एन आईएएस प्रोबेशनर ट्रेनिंग कर रही हैं। सो इट गेव मी द अपॉर्चुनिटी टू ड्रीम फॉर टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माई फेलो कंट्रीमैन। अब जब ये आ गई हैं लवासना में, आईएएस बन गई, तो अब इनको ये एक और अपॉर्चुनिटी या मतलब एक और इनको मौका देता है कि और भी बड़े सपने दे सकें, टेंस ऑफ थाउजेंड मतलब हज़ारों, मतलब कई सौ हज़ार लोगों के बारे में ये और मतलब सपना दे सकें कि उनकी लाइफ को ये कैसे और बेहतर बना सकती हैं। टू इनेबल देम टू ओन एंड एक्सरसाइज द फ्रीडम दे सो राइटफुली डिजर्व। और उनको भी वो फ्रीडम मिल सके जो वो जो मीन्स एक अधिकार के रूप में उनको मिलना चाहिए, जो उसके वो योग्य हैं, right? So civil servants enjoy a degree of trust that has been built over the years by generations of people in the public services working anonymously। तो बहुत सारे, तो आज जो ये एक तरीके का विश्वास है हमारा सिविल सर्वेंट्स जो हमारे देश के होते हैं, आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स, आईआरएस ऑफिसर, इनके प्रति जो एक तरीके का विश्वास है जनता का, वो कई मतलब सालों से या कई जनरेशन, कई पीढ़ियों से जो भी सिविल सर्वेंट्स हैं, जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं, जो बिना किसी मतलब जो अपना नाम बिना सामने लाए इस देश की सेवा कर रहे हैं, उनकी वजह से ये एक मतलब जो है ट्रस्ट, एक विश्वास जो है सिविल सर्विसेज के प्रति पैदा हुआ है, राइट। सो एज अ यंग सिविल सर्वेंट, तो ये बता दी कि जैसा कि मैं एक यंग मतलब अभी जस्ट आई हैव स्टार्टेड माई करियर, आई एस्पायर टू पे एज मच अटेंशन टू इम्प्रूविंग एवरी डे लाइफ एज टू बिग प्रोजेक्ट्स, राइट। तो ये बता दें कि मेरे हिसाब से क्या है, मतलब कि ये हर एक व्यक्ति के जिंदगी में इंप्रूवमेंट लाना चाहती हैं, एवरीडे लाइफ में इंप्रूवमेंट लाना चाहती हैं। फ्रॉम स्क्विकी क्लीन स्ट्रीट्स टू कैंपेन्स दैट एम्पावर ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, आई होप आई वर्क टू क्रिएट अ कल्चर ऑफ एक्सीलेंस। तो ये बता दें कि मैं ऐसी आशा करती हूँ कि मैं बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर सकूँ, ऐसा कल्चर बना सकूँ, राइट। दैट एज इंडियंस वी सी एक्सीलेंस एज एन एवरीडे हैबिट। को इतना ज़्यादा मतलब इन्होंने मतलब काम को प्रायोरिटी देना है, अपने अच्छे से इतना अच्छा काम करना है कि लोगों को जन लगे अरे आज एक मैम आई थी, वो कलेक्टर थी और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, तो ये चाहती हैं कि मैं जहाँ जहाँ जाऊँ हर जगह ऐसा करूँ कि वो मतलब वो ऐसा नहीं कि आज हो गया, हमेशा मतलब लोगों के लिए ये मतलब एवरीडे की हैबिट बन जाए, ठीक है। और ये एक एक्सीडेंट ना रहे कि हाँ मतलब कभी कभी वाला, ठीक है। आई एस्पायर टू सर्व एंड सर्व विद ह्यूमिलिटी। और ये ऐसी आशा करती हैं कि ये सर्व करेंगी नेशन को और सर्व करेंगी बहुत ही विनम्रता के साथ, एंड नॉलेज दैट द सिटीजंस आर एंटाइटल्ड टू सर्विस एज अ मैटर ऑफ राइट एंड नॉट बाय फेवर। और मतलब लोगों की सेवा करना एक अधिकार के रूप में ये सेवा करेंगी कि जैसे लोगों का अधिकार है कि उनको अच्छी सर्विस मिले, राइट, और ना कि एक मतलब अधिकारी के रूप में आप उनको फेवर करें, ठीक है।
सो एज द अमेरिकन सिविल एंड चाइल्ड राइट्स एक्टिविस्ट मैरियन राइट एडलमैन पुट इट, सर्विस इज द रेंट दैट वी पे फॉर लिविंग। तो जैसा कि अमेरिका के जो एक सिविल राइट्स हैं, ठीक है ना, अमेरिका के जो सिविल एंड चाइल्ड राइट्स एक मैन है, तो एक्टिविस्ट है, उनका नाम है मैरियन राइट एडलमैन, ठीक है। तो उनका कहना यह है कि सर्विस इज द रेंट, मतलब सेवा एक ऐसा किराया है जो कि हम जिंदगी जीने के लिए देते हैं, राइट। तो ऐसी जो लाइन्स हैं आप इनको लिख सकते हैं, एथिक्स में आप इनको यूज़ कर सकते हैं, या आप अपने माइंडसेट को भी प्रिपेयर कर सकते हैं कि आपका माइंडसेट जब अच्छा होगा तभी आप अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे, राइट। तो आप देख रहे हैं कि कैसे किसी की जर्नी, आप देख रहे हैं कि जो सिविल सर्विसेज जिन्होंने क्रैक किया वो भी ऑल इंडिया रैंक 4th के साथ, तो उनका क्या माइंडसेट रहा है, ठीक है ना। सो एज वी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम ऑर्डिनरी सिटीजन्स टू ऑफिसर ट्रेनिंग, तो अभी ये एक ऑर्डिनरी आम नागरिक से अब ये एक ऑफिसर ट्रेनिंग के रूप में बदल रही हैं इन द सर्विस ऑफ दिस ग्रेट नेशन, ठीक है ना, इस देश की सेवा करने के लिए, राइट। वी आर रिमाइंडेड दैट सर्विस इज नॉट एन ऑब्लिगेशन बट अ प्रिविलेज ओनली अ फ्यू गेट। तो यहाँ पर मतलब याद दिलाया जाता है या बताया जाता है या लबासना में ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है कि ये एक ऑब्लिगेशन नहीं है, कि ये मतलब आपका एक दायित्व नहीं है, ये एक आपको विशेषाधिकार मिला है जो कि बहुत कम लोगों को मिलता है, ठीक है, सेवा करने का। टू एक्सरसाइज दिस प्रिविलेज इज इन अ मैनर दैट अलाउ ईच सिटीजन टू कंट्रीब्यूट टू द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री। तो इस हिसाब से मतलब ये एक्सरसाइज जो ये प्रिविलेज मिली हुई है आपको, जो विशेषाधिकार मिला हुआ है, इसको इस तरीके से आपको यूज़ करना है कि आप मतलब कंट्री के जितने भी सिटीजन हैं उनकी लाइफ में कंट्रीब्यूट कर सके, ठीक है ना, जिससे कि क्या है और अच्छा हमारे हमारे जो देश का फ्यूचर है और अच्छा भी हो सके। टू बी रेजिलियंट, बी इन कंट्रोल ऑफ अ लाइफ, प्लेसिंग लिबर्टी इन द हैंड्स ऑफ सिटीजन्स इज द ट्रू एसेंस ऑफ द सर्विस। लोगों को आज़ादी, मतलब आज़ादी के साथ उनकी ज़िंदगी रहे, ठीक है ना, ये मतलब इसका सबसे मेन जो सेंट्रल आइडिया है जो सर्विस का है। एम्बार्किंग ऑन दिस जर्नी इन द क्वीन ऑफ हिल्स, तो क्वीन ऑफ हिल्स किसको बोलते हैं, मिसूरी को बोलते हैं क्वीन ऑफ हिल्स। तो यहाँ पर जो इनकी यात्रा भी शुरू हुई है। द मीनिंग ऑफ फ्रीडम नाउ इंटेल्स सर्विंग माई मदरलैंड, तो इनका मतलब है कि फ्रीडम का मतलब अब इनके लिए क्या बताता है, इंटेल्स मतलब क्या बताता है, सर्विंग माई मदरलैंड, की अपनी मातृभूमि की सेवा करना और अच्छे से करना, राइट। तो ये क्या लिखा है, द राइटर हैज सिक्योर्ड fourth rank in Civil Service Examination 2022 and is currently undergoing training as an IAS professional at Labasna, Missouri. Views are personal, right? तो आप इनकी लाइफ से कितनी इंस्पिरेशन ले सकते हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली आपको समझना चाहिए कि कितना टाइम इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, और कैसे इनको 2-3 अटेम्प्ट में, स्टार्टिंग के मतलब 2 अटेम्प्ट में फेल्योर का सामना करना पड़ा, उसके बाद भी क्या माइंडसेट रहा, कैसे टाइम मैनेज किया इन्होंने, ठीक है ना, और किस तरीके से इन्होंने मतलब क्या इन चीज़ों को इनको एक तरीके से इम्पीटस मिला, और कैसे ये अपने कंफर्ट जोन से बाहर आई, उसके बाद किस तरीके से इन्होंने अपनी लाइफ को इस तरीके से शेप किया और आज ये सक्सेसफुल सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।